ہم سلامتی کے لیے بلائے گئے ہیں. خدا نے ہمیں ازل سے سلامتی کے لیے بلایا ہے. سب سے پہلے ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں خداوند کا اور آپ سب کا کہ خدا نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم کلام کے گہرے بھیتوں کو جان سکیں. اور آج کی جو سیریل ہوگی میرا ایمان ہے جیسے پچھلی سیریل میں آپ نے بڑی برکت حاصل کی اور آج کی سیریل کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے وہ بڑی برکت حاصل کریں گے. ہمارا جو سبجیکٹ ہوگا سیریل ہوگی فلنس کے تعلق سے، معموری کے تعلق سے. تو یہ 6 ماہ کی سیریل سنیں گے معموری کے تعلق سے، اس کی حضوری کے تعلق سے کہ ہم نے روز روز کیسے معمور ہونا ہے. اور یہ معموری جو ہے بہت ضروری ہے، فلنس. تو اس کا جو آج کا سرمن ہوگا سیریل کا مسا اور معموری، انونٹنگ اینڈ فلنس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ خداوند کے کلام سے نکالیے. خداوند کے کلام میں سے حزقیل کی کتاب 47 باب اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے. پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دائنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا. تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر. اور کیا دیکھتا ہوں کہ دائنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹخنوں تک تھا. چوتھی آیت سنیے. پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا. پھر اس نے ایک اور 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا. اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا. اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سارے درخت ہیں. تب اس نے مجھے فرمایا کہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف سے بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شری کر دے گا. اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے والا جاندار زندہ رہے گا. ہاں جی، 9ویں آیت سنیے. اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا ہے اور وہ شرین ہو گیا ہے. ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے نامہ ہے. خداوند کے کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 21 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی. اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسا کیا وہ خدا ہے. آگے، اور جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھ جائیے. میں چاہوں گا پاک روح کے لیے، روح قدس کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے زوردار تعلیم جا کر خدا کے نام کو ہاللویا ہاللویا. سب نہیں بولے ہاللویا. خداوند کے جلال کے لیے پاک روح کے لیے زوردار تعلیم جا کر خدا کے نام کو ہاللویا. تو فلنس کے تعلق سے، معموری کے تعلق سے، یہ فلنس، یہ معموری، یہ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. اور یہ فلنس خدا کی ذات کے اندر ہے، کسی اور ذات کے اندر نہیں ہو سکتی. معموری جو ہے فلنس خدا کی ذات کے اندر، اور اس کے بعد کرائسٹ کے اندر فلنس لکھے الوہیت کی ساری معموری لکھے مسیح میں مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہے. پھر ہولی اسپرٹ کے اندر یہ معموری پائی جاتی ہے، اور اسی طرح میں اور آپ یہ معموری لیتے چلے جاتے ہیں وہی دنیا کے اندر. جب آسمانوں پر چلے جائیں گے تو فلنس کے اندر آ جائیں گے. مگر معموری لینی ہے، خدا کی معموری کے اندر بڑھنا ہے. جیسے گلاس ہوتا ہے نا،
ग्लास आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरता चला जाता है। तो आधा होगा तो आप फुल नहीं कहेंगे, या कहेंगे आप आधा ग्लास होगा पानी का तो उसे फुलनेस कहेंगे? नहीं, फुल नहीं कहेंगे, कहेंगे आधा और चाहिए तब फुल होगा। तो ये तो भाई पानी जो है फुलनेस के अंदर आकर बहना शुरू हो जाए तो इसे फुलनेस कहते हैं, इसे ममूरी कहते हैं। ये ममूरी को हमने पकड़ना है, ये ममूर होते चले जाना है। और ममूर उस वक्त होंगे जब हम खुदा की बारगाह के अंदर आएंगे, खुदा की जात के अंदर खुदा के कलाम को लेंगे, भेदों को लेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, उसकी वर्शिप उठाएंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, दुआ के अंदर ठहरेंगे, तब ये ममूरी हमारी जिंदगी के अंदर उजागर होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये कम ना हो, इसका लेवल बढ़ता ही चला जाए, क्योंकि खुदा की जात के अंदर खुदा को देखना है। तो खुदा को देखने के लिए ममूरी होना जरूरी है। भाई खुदा अनसीन, ना नजर आने वाला स्पिरिट है, अगर उसे देखना है तो फिर खुदावन की हजूरी में आकर ममूर होते चले जाना है। जब ममूर होंगे तो तभी खुदा हमें नजर आएगा। बोलिए आमीन। इसलिए आज की सीरियल जो स्टार्ट है ममूरी के ताल्लुक से, और दुनिया के लोग जो हैं वो ममूरी को, आज की जो टर्म यूज हो रही है दुनिया के अंदर, वो कहते हैं बड़ा मसा था। क्या था? अब ममूरी को क्या ले रहे हैं टर्म के अंदर? कहते हैं यार थे गए सब बड़ा मसा से, कहते ना यार फलां चर्च गए सब बड़ा मसा से, फलां कन्वेंशन च गए सब बड़ा मसा से। मगर मसे का मतलब ही कुछ और है, ममूरी का मतलब कुछ और है। वो ममूरी को मसा के अंदर ले रहे हैं, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कहते हैं बड़ा मसा से। सुना या नहीं सुना? आज तो दुनिया के अंदर बड़ा मसा से, टच, बड़ा मसा से। मसा का जो मतलब होता है वो तेल लगाना होता है, अनॉइंट करना, मसा करना। और पुराने नामा के अंदर जब ये मसा किया जाता था तो तेल के साथ किया जाता था। ये स्पेशल खुदा ने मूसा को कहा तेल बनाने के लिए। ये जो रैंक के ऊपर होता था, हाई रैंक के ऊपर बंदा होता था, जो ओहदेदार होता था, जिसे मुकर्रर किया जाता था खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के काम के लिए मुकर्रर किया जाता, तब वो तेल जो होता था उस पर अंडेला जाता था, उसमें डाला जाता था, उससे लगाया जाता था, जिसका मतलब होता था इसे मसा किया गया है। इससे क्या किया गया है? तो 3 तरह की खिदमतें थी जिनको मसा किया जाता था। एक तो जो नबी होता था, ताकि नबूवत कर सके, खुदा का काम कर सके, जब वो नबी होने के लिए मुकर्रर होता तो फिर उसको तेल से क्या किया जाता था? ये तेल घर में नहीं बनाया जा सकता था। ये खुदा ने कहा कि मूसा से कि ये तेल बनाना, और इसके अंदर रोगन डाले जाते थे, मुख्तलिफ चीजें मिलाकर ये तेल बनाया जाता था, मसा का तेल। और जब कोई नबी मुकर्रर होता तो नबी के ऊपर ये तेल लगाया जाता था। उसका मतलब होता ये मसा हो गया है, ये खुदावन की जात के लिए, खुदा के काम के लिए मुकर्रर हो गया, ये इस रैंक के ऊपर आ गया, इस ओहदे के ऊपर आ गया, अब ये काम करेगा, इस काम के लिए ये मुकर्रर हो गया। खुदा ने इसे पाक कर दिया, तभी तो वो खुदा का काम कर पाते थे, वरना नापाकी के अंदर कोई खुदा का काम नहीं कर सकते, नबूतें नहीं उतर सकती। खुदा आकर उनसे, खुदा तो पाक है, नापाक के साथ तो नहीं आकर बात करेगा, तो उनको पाक बनाने के लिए वक्ती तौर पर खुदा उससे क्या करता था, उनको तेल से मसा किया जाता था ताकि वो मुकर्रर हो जाए और वो खुदा का काम करते थे, नबी फिर बन जाते थे, नबूवत करते थे, कलाम करते थे। और फिर जब हैकल के अंदर अगर ऑयल किसी पर डाला जाता है, इसका मतलब है कहानत के लिए, जो काहिन है, कोई काहिन मुकर्रर होता तो तभी क्या होता, उस पर, उसके ऊपर मसा का तेल डाला जाता, मतलब कि ये मसा हो गया, ये मुकर्रर हो गया खुदा के काम के लिए, खुदा इसे क्या करेगा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा बादशाहों को मुकर्रर किया जाता था मसा के लिए। जब बादशाह के लिए कोई मुकर्रर होता तो उसके सर पर भी क्या हो जाता था, तेल डाला जाता था। तेल का मसा का मतलब ही तेल लगाना। आज तेल लाते ना, तुसी भी लाया, मैं भी लाया, लगाते ना तेल, तेल का मतलब भी होता है मसा का। मगर आज आप देखें लोग जो है तेल लाते हैं ताकि मसा किया जाए। उस वक्त तो तेल जो था वो ओहदों के लिए, खिदमत के लिए, जो कुछ चुने जाते, मुकर्रर होते पाकीज़गी के अंदर, ताकि खुदा उनकी जात से काम ले सके, तो उनको क्या किया जाता था, उनको मसा किया जाता था। मतलब मसा नहीं कर सकता, आज खुदा का रूह हमें मुकर्रर करता है, खुदा का रूह हमें मसा करता है। हमें क्या करता है खुदा का रूह? इसलिए क्या, उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला
प्लीज। हालांकि गैर कौमों को भी मसा किया गया खुदा ने। गैर कौमों का यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा बादशाह, गैर कौम का बादशाह था, उसे लिखा मसा किया गया, उसे तो तेल नहीं लगाया गया, मगर क्योंकि खुदावन की जात के लिए काम करना उसने, इसलिए उसे खुदा ने मुकर्रर कर दिया, मसा कर दिया। तो तेल लगाना ही मसा होता था। मगर आज दुनिया के अंदर ये टर्म की जाती है, टर्म यूज हो रही है दुनिया के अंदर, ये बड़ा जुमला यूज होता है कि बड़ा मसा था। मसा का मतलब तेल लगाना। लेकिन मैं जो बात करने को हूं वो ममूरी के ताल्लुक से है। आज इंसान जो है, जब ममूरी आती है, खुदा का जोर मिलता है, जब हम देखते हैं खुदा की हजूरी यहाँ पर जुम्बश कर रही है, तो कहते हैं बड़ा मसा है। मगर हमें ये टर्म नहीं यूज करनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि खुदा की हजूरी बड़ी थी है। आमीन। मसा का मतलब तेल लगाना, मतलब तेल थोड़ा लगा रहे हैं आप तो खुदा की हजूरी के अंदर है, खुदा की फुलनेस के अंदर आ गए, ममूरी के अंदर आ रहे हैं, खुदा की हजूरी के अंदर है। तो फिर आप जुमला बोले कि बड़ा खुदा की हजूरी के अंदर, आज खुदा की हजूरी थी और हजूरी के अंदर आकर हमने खुदावन की बंदगी की है, खुदा के नाम को। मैंने बताया कि जितने पुराने हरनामा के नबी थे उनको तेल लगाकर मसा किया जाता था, मगर आज मसा नहीं किया जाता। आज भैया खुदा का रूह हमें मसा करता है। इसलिए तो खुदावन के कलाम में मिलता है हमें कि आज हम किसी को मुकर्रर करते हैं तो फिर भाइयों तेल लगा कर नहीं करते। हाँ, तेल लगा सकते हैं बीमारी की हालत में। कोई बीमार है, यीशु मसीह खुदावन के कलाम में लिखा है कि कोई बीमार है तो उस पर क्या करें, उस शख्स को तेल लगाना जो मतलब कि सेंस नहीं उसकी काम कर रही, सेंसेस नहीं काम कर रहे। कोई ऐसा बीमार है, कोई बीमारी की हालत के अंदर है जिसे फीलिंग महसूस नहीं होती, महसूस नहीं होती सेंसेस, तो फिर उससे तेल लगाया जाता है ताकि वो फील करें और फिर वो बंदा शिफा पा जाता है। इस हालत के अंदर तेल लगाया जाता है। ऐसा बीमार जो सेंसेस जिसकी काम नहीं कर रही, तो फिर उससे तेल लगाने से, खादम जब तेल लगाकर दुआ करता है तो फिर वो ईमान उसका बढ़ता है कि ये कुछ लगाया गया मुझे, तो ईमान से वो क्या कर जाता है, शफा पा जाता है। शफा हमेशा याद रखिए ईमान से मिलती है। बोलिए आमीन। इसलिए हमें जो है आज दुनिया के अंदर तो यही टर्म की यूज की जाती है, बड़ा मसा था। मगर हमने ईमानदार को जब समझ आ गई, मुकद्दस लोगों को, खादमों को, खिदमत करने वाले लोगों को, बिलीवर जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो जब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे खुदा की हजूरी के ताल्लुक से कि आज बड़ी खुदा की हजूरी थी। आमीन। हजूरी का मतलब है खुदा की प्रेजेंट, खुदा की हजूरी, खुदा का होना वहां पर, रूह कुदस की प्रेजेंट, यीशु मसीह की प्रेजेंट, फरिश्तों की प्रेजेंट, खुदा की जात की प्रेजेंट। तो ये भैया ममूरी के ताल्लुक से हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना, रोज रोज क्या होना है, खुदा की जात में ममूर होते चले जाना। मैंने बताया खुदा ममूर है। और ये तो मसा के ताल्लुक से हो गई। हिजकिय्याह को खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने क्या कहा, लिखा है कि पानी के अंदर से चलाया, बहुत बड़ा दरिया था और हिजकिय्याह को वहां ले गया खुदा। और लिखा है खुदा ने हिजकिय्याह को क्या कहा, उसने, खुदा ने लिखा है कि एक फरिश्ता आदमजात लिखा हुआ है। इसका मतलब है थियोफैनी कहेंगे तो खुदा जब रोया के अंदर आकर बात करता है तो थियोफैनी इस्तेमाल होता है। और जब क्राइस्ट रोया के अंदर है, इसका मतलब क्रिस्टोफैनी के अंदर मसीह यीशु उसके पास आया है। तो क्रिस्टोफैनी के अंदर आकर यहाँ पर आगे फरिश्ते का जिक्र है, मगर आदमजात खुदा का बेटा, आमीन, जिसकी सूरत भाइयों देखें आग के शोलों की मानो, हालेलुया, पीतल के हाथ। तो आप देखिए क्राइस्ट खुदा का बेटा है। तो क्रिस्टोफैनी के अंदर यीशु मसीह आकर हिजकिय्याह के पास आया, उसे क्या कहा है, लिखा है डोरी थी उसके हाथ में, लिखा है 1000 उसने नापा है, 1000 नापा और फिर लिखा है उसे चलाया। अब देखिए बहुत बड़ा दरिया है, पानी के अंदर चलना कितना मुश्किल है, किसी को पता ही नहीं। जब ये पिछले दिनों बारिश हुई है, कोई पानी के अंदर से, इतना इतना पानी था, मैंने तजर्बा किया, पानी के अंदर से चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने के बेटे ने लिखा, वहां पर लिखा है जिसके हाथ में डोरी थी, लिखा उसने नापी और 1000 नापा। अब देखिए 1000 नापा, 1500 फुट, ये स्टॉप तक भाइयों इतना फासला, लिखा है 1000 हाथ नाप कर, लिखा उसमें से हिजकिय्याह को चलाया और लिखा पानी टखनों तक था। ये मामूरी का भाई मकसद बताने लगा, ये इस तरह मामूर होना है। पानी कहाँ था, 1000 जब उसे चलाया है हिजकिय्याह को, तो पानी कहाँ तक गया है, बोलिए टखनों तक। बोलिए कहाँ पे,
टखनों पर गया, यानी किसी को टारगेट दिया जाए वहां तक जाना है, यहाँ से लेकर वो दीवार तक। तो जब उसने अचीव कर लिया, पानी से गुजर गया, तो वहां पर खड़ा हुआ, उसने कहा हाँ जी मैंने कर लिया 1000 हाथ। जब पानी में से चला तो पानी टखनों तक था। फिर लिखा है एक और हाथ, 1000 हाथ नापा, और लिखा है कि फिर उससे हिस्कियल को चलाया और पानी लिखा है घुटनों तक था। कहां पे आ गया पानी? अब घुटनों तक पानी चलने लगा। लिखा है एक और 1000 नाप कर, लिखा है फिर उसको हिस्कियल को वहां चलाया और पानी कहां तक आ गया? कमर तक आ गया। अब कमर तक पानी आ जाए, चलना बड़ा मुश्किल है भाई। हम तो बपतिस्मा देते हैं ना, जब पानी का बपतिस्मा देने जाते हैं तो नहरों के अंदर, तो कमर तक जब पानी आता है तो चला नहीं जाता, बड़ा कमर तक हो तो हम बपतिस्मा देते हैं। नालों के अंदर हम लेकर जाते हैं, वहाँ पे बपतिस्मा, नदियों के अंदर, और फिर और बेशुमार जगहों पे हम बपतिस्मा देते हैं। कई दफ़ा हमें जोके वगैरह भी लग जाती हैं, लेकिन हम बताते नहीं ताकि वो डरे ना जाए बपतिस्मा देने, डर जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि पानी जब कमर तक होता है तो फिर कोशिश करते हैं कमर तक हम बपतिस्मा दे देते हैं। लिखा 1000 और नापा और पानी चढ़ कर लिखा तैरने के दर्जे तक पहुंच गया। हालेलुया। लिखा है तैरने के दर्जे तक, और इसके अलावा आगे चल नहीं पा रहा। और लिखा है तैरने के, अब इसके को कहा चल भी अब तैरने के दर्जे तक आना है। तो पहले घबरा गया, इतना पानी, इतना पानी। लोग पानी से डर जाते हैं, जब बहुत पानी हो उससे पानी का जोर शोर डरा देता है लोगों। तो लिखा उसमें से चलाया और लिखा पानी चलकर वो चलना शुरू हो गया। ये नहीं उसने कहा नहीं बस मैं बस इतना ही चलूंगा 500 फुट, नो पूरा भाइयों। लिखा चलता चला गया इसका, और लिखा पानी तैरने के दर्जे को पहुंच गया। लिखा अब मैं आगे अबूर ना कर सका, आगे नहीं अबूर होता भाई। अब लिखा है कि तैरने के दर्जे को जब उसने अबूर किया तो आगे नहीं डूबने लगा, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये दरिया जो है होली स्पिरिट पाकरू का है। ये पाकरू की चीज है, हालेलुया। ये भाइयों पाकरू का जो दरिया जारी है, इसे अबूर नहीं किया जा सकता, इसे अबूर नहीं कर सकते। लिखा फिर उसको लिखा वापस किनारे पर लेकर आया गया, और किनारे पर आकर वो क्या देखता है? दरख्तों को देखता है लगे हुए। जब टखनों तक पानी है, टखनों तक भी दरिया दरख्त हैं। जब वो घुटनों तक आया तो तब भी वहां पे भी दरख्त लगे हुए। जब कमर तक आया तो उस लेवल के अंदर भी दरख्त है, और जब तैरने के दर्जे के ऊपर है तो तब भी वहां पे भी दरख्त लगे हुए। और खुदावंद के कलाम में ये भाइयों ममूरी का, ये खुदावंद की फुलनेस का, ये भाइयों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हर जिंदगी के अंदर भाइयों एक्सपीरियंस होना चाहिए, रूहानी जिंदगी का। मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी का भाई ये लेवल बढ़ता चला जाए। कुछ लोग टखनों तक हैं, फिर घुटनों तक कुछ आ गए हैं, कुछ कमर तक है, और कुछ तैरने के दर्जे पर पहुंचे हैं। भाइयों मैं और आप तैरने के दर्जे को हमने चुना है। हम यहाँ कलाम सुना रहे हैं, ऐसे नहीं सुना रहे भाइयों, ये तैरने के दर्जे तक पहुंचे हैं, ऐसे नहीं कलाम। आप भी यहाँ पर आए हैं तो दर्जों को छूते हुए आ रहे हैं। कुछ तो टखनों तक, कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक है, और कुछ तैरने के दर्जे पर आए हुए हैं। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी के अंदर हो। बेशक इन एक्सपीरियंस के अंदर दुख मिलेगा आपको, लोग सताएंगे, आपको दुख देंगे, आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, मगर आपने खुदावन की हुजूरी में चलते जाना है, खुदा की ममूरी को लेना। भाइयों ये फुलनेस आए, ममूरी आए। हिस्कियल को तो ये एक्सपीरियंस आया, खादमों दुनिया के जितने खादम है वो भी जब आते हैं तो इस लेवल के ऊपर मैं और आप भी बिलीवर ईमानदार भाइयों फुलनेस के अंदर आए, खुदा की हुजूरी के अंदर रोज रोज क्या हो बढ़ते चले जाएं। ये ममूरी हमें भाइयों जोर बख्शती है। इसलिए भाइयों खुदा की जात के अंदर ये ममूरी पाई जाती है, होली स्पिरिट के अंदर ये ममूरी है, और रूह कुदस के अंदर, क्राइस्ट के अंदर ये ममूरी है। इसलिए तो वो लिखा है हमें क्या करना है, रोज रोज ममूर होते चले जाना है। पाकरू हमें ममूर करता चला जाता है। हिस्कियल को ये तजर्बे दिखाए, इसलिए मुझे और आपको भी भाइयों ये तजर्बों में से गुजरना है। हमारी लाइफ के अंदर इसी तरह पानी जो है वो क्या है, टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक और तैरने के दर्जे को भाइयों मैंने और आपने चुना है। और इसका रूहानी मतलब ईमान की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा के कलाम लिखा है जब रूह कुदस नाज़िल हो गया 120 की जमात में, और लिखा है कि वो रूह कुदस से भर गए
और गैर ज़बानें बोलने लगे, तर्जमे नबूवतें रूहानी नेमतों से ममूर हो गए। और फिर लिखा है आपस में क्या करने लगे, जब बैठ गए खुदा की हुजूरी में तो फिर लिखा है कि रफाकत रखने लगे। क्या करने लगे? फेलोशिप से कहते हैं रफाकत को। रफाकत रखने लगे, रोटी तोड़ने लगे, क्या करने लगे? दुआ करने लगे, रसूलों से तलीम पाने लगे। ये 4 ही लेवल है भाइयों ईमान की किताब में, वो भी टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, और फिर तैरने के दर्जे को पहुंच गए। रसूल क्या करने लगे? बोलिए, रफाकत रखने लगे। फेलोशिप, जब रफाकत रखना, जो आप यहाँ पर आए हैं ये रफाकत रखना है। अगर रफाकत नहीं ना तो लोग टूट जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। ये रफाकत रखेंगे, खुदा में जुड़े रहेंगे, ममूर रहेंगे। और अगर ये फेलोशिप टूट जाएगी ना, ये यहाँ नहीं आएंगे, हमारे साथ रफाकत नहीं रखेंगे, ईमानदारों के साथ ताकत नहीं मिलेंगे, तो फिर आप कायम नहीं रह सकेंगे। मसीह में चलने का अहद किया है, बपतिस्मा लिया है, रासबाजी को पूरा किया, यीशु के लहू से धुले हुए हैं। तो 4 बातें आपकी जिंदगी के अंदर, जैसे हिजकिय्याह को चलाया गया, तजर्बे दिए गए, इसी तरह आज ईमानदार बिलीवर कलीसिया को ये तजर्बे हैं कि वो क्या करे? फेलोशिप रखे, रफाकत रखे। फिर दूसरा क्या? रोटी तोड़ते नजर आए, मसीह का बदन लेते हुए नजर आए, उसके खून और उसके बदन में शामिल शरीक हों। और फिर दुआ करते हुए नजर आए। और फिर उसके बाद क्या? तलीम रसूलों से पाते हुए नजर आए। ये 4 बातें, इसलिए हिजकिय्याह को भी ये लेवल के अंदर खुदा लेकर आया। मुझे और आपको, ईमान की कलीसिया को, आपको भाइयों, आज कलीसिया जो है वो इसी लेवल से बढ़ती चली जा रही है। अब दुआ के अंदर ठहरे, फिर रफाकत रखें, रोटी तोड़ें, और फिर क्या करें? तलीम पाएं। और अगर आपके अंदर आप तलीम नहीं ना पाते तो इसका मतलब है आपको कोई हक नहीं, रोटी भी आप तोड़े। आप शायर बने। ये 4 बातें, ये 4 लेवल हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। पानी टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, और फिर तैरने के दर्जे को भाइयों पहुंचे। आमीन। और आज हमें क्या करना है? रफाकत रखनी है। बोलिए, रफाकत रखना। दूसरा, रोटी तोड़ना। तीसरा, दुआ करना। चौथा, रसूलों से तलीम पाना। याद हो गया या नहीं हो गया? 4 गल्ला किसी को याद है तो बताए। आसिया, आसिया सुनिए। हाँ जी, आसिया। हाँ जी, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ करना, तलीम पाना। बहन प्लीज जोर से हालेलुया। ये लेवल है भाइयों। हिजकिय्याह को चलाया गया पानी में से, पानी टखनों तक, फिर चलाया गया 1000 और नापा गया, उसे चलाया, चल भी पानी घुटनों तक, 1000 और नाप कर क्या? चल भी पानी में, फिर चला और पानी कमर के दर्जे तक पहुंच गया। कहा फिर 1000 और नापा और कहा चल इसमें से, और लिखा वो चलने लगा। और लिखा है पानी तैरने के दर्जे तक पहुंच गया। और खुदा की कलाम लिखा है ये पानी होली स्पिरिट का है, रूह कुदस का पानी। हालेलुया। ये फुलनेस है, ये मामूरी है भाइयों। ये लेवल को मैंने और आपने चुना है। रफाकत रखनी है, रोटी तोड़नी है, और दुआ करनी है, और क्या करनी है? रसूलों से तलीम पाते चले जाना है। ये मेरी और आपकी जिंदगी हो। अगर एक भी बात नहीं ना इसमें, तो फिर इस शायरबानी के अंदर, रोटी के अंदर शरीक होने का हमारा हक नहीं है। अगर दुआ नहीं करते तो क्या कोई हक है? रफाकत नहीं रखते, चर्च में नहीं आते तो क्या हक है? तलीम नहीं पाते तो क्या हक है? दुआ नहीं करते तो क्या हक है? भाई उसका बदन जो है वो खाने की चीज़ है, इसलिए दिया गया। उस यीशु ने कहा ये मेरा खून है, ये पीने की चीज़ है, बत्तीरों के वास्ते ये बहाया गया। आमीन। ये बदन दिया गया है, तो उसने तो हमारा अपना बदन ही हमें खाने को दिया, खून पीने को दिया, ताकि हमें क्या हो? जिंदगी हो, ताकि हम इस लेवल को छुएं, इस ग्राफ को छू लें, पानी टखनों तक, घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर तैरने के दर्जे को पहुंचे, ताकि रूह की मामूरी, खुदा की मामूरी, खुदा की हुजूरी, फुलनेस मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए। आमीन। इस कलाम की वजह से खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आइए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखेंगे, बैठे रहेंगे, और छोटा सा एक कोर्स गाकर अपने आप को शायरबानी के लिए तैयार करेंगे। आंखें बंद कीजिए ताकि खुदा के नाम को मुबारक आ जाए। दुआई हालत में रहिए।